Hello students, Jainacharya Sri Ajra Amarju Vidyadham. Welcome back to online study, Standard 4th, Subject Environment, Chapter 16, A Busy Month, Part 1. अभी हम आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 16। इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? तो बच्चों, आपने अलग अलग बर्ड्स को देखे हैं, राइट? तो क्या आप बर्ड्स ये सब एक जैसे हैं? नहीं, कोई भी प्राणी, कोई भी ह्यूमंस एक जैसे हैं नहीं है। तो हम आज अभी बर्ड्स के बारे में सीखेंगे। अभी आगे हमको क्या करना है? लेसन नंबर 16 हम स्टार्ट करेंगे। वी कैन सी अ नंबर ऑफ क्रिएचर्स अराउंड अस. These include animals, birds, and insects. There is variety in how these creatures look, their color, size, body parts, eating habits, method of walking and moving and home are different. सबका ये सब अलग अलग होता है. These creatures have a lot of variety in their body parts. For example, some animals have tails, some have trunks, some have two or more than 2 feet, while some do not have feet at all. Some have beaks and wings while others have horns. Eating habits of these creatures are also different. Some animals eat with their mouth and tongue, while others eat food with their beaks. Some animals use their trunks for food, while others use their for lime. मतलब कि जो आगे के जो उसको लाइम बोलते हैं, फ्रंट फिट, उससे आगे के पैर जो है वो उससे खाते हैं. और देयर फिट्स टू होल्ड फूड वाइल ईटिंग इट. जैसे रैट है, स्क्विरल है, ये सब आगे के उसके दो जो हाथ जैसे पैर होते हैं ना, उससे खाते हैं. हमने देखा ही है ये सब. देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वेराइटी इन होम्स ऑफ क्रिएचर्स. एनिमल्स लिव इन होम्स दे मेक और बिल्ड, while pet animals live in their master's home. Some animals live on both land and water. Birds make various types of nets to stay and lay eggs in. The method of making nest and choosing a place for it differ from birds to birds. All birds do not have the same types of beak. There is varieties in beaks according to the uses. Some birds have short, small beaks, while others have long beaks. Some birds have flat beaks, while others have crooked beak. जैसे जिसका यूज़ होता है वैसे उसके पार्ट्स होते हैं भगवान ने दिए हुए. Animals use their teeth to chew grass, leaves, and tender branches to catch hold to food. To breaks or tears food into pieces, as well as to cut or pick at things. All birds do not have the same types of feet. There is varieties in feet according to their uses. Some birds' feet are separate just like four fingers, while some birds' feet are joined with skin between their fingers. Some birds have short feet, while others have long feet. Some birds' feet crawl and croak, while those of others have talons. So now let's start chapter number 16, A Busy Month. Busy month. Dear children, यहाँ पे किसका आपको पिक्चर दिया हुआ है? डव का.
Dear children, Dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. The sparrow, the sparrows, doves, and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. Some of the birds have already made their nest. The parent bird are busy feeding the chicks with different kind of insects. Insects and other things. यहाँ पे सब अपने अपने काम में जुड़ गए हैं। जो नून के 3 o'clock बजे जो स्पेरो है या डव, ये सब क्या है कि किसके पास है? वो उसने क्या उसका नेस्ट बनाने को शुरू कर दिया है। कोई जो बर्ड्स है उसने वो नेस्ट में जो उसके एग्स होते हैं वो लेइंग करना उसका वर्क चालू है। कोई मतलब कि जो हमारा जो दिन उगता है तो हम भी बहुत सारे ऐसे हमारे भी ऐसे वर्क्स होते हैं कि हम सब सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर तैयार होकर स्कूल आते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिर नाश्ता खाना, फिर वापस अपना वर्क चालू करते हैं, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे बर्ड्स के भी ऐसे कुछ काम होते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही सनराइज़ होता है तो बर्ड्स भी अपना काम चालू कर देता है। जो कोई है वो अपने बच्चे मतलब ही अंडे को जो लेइंग करता है, कोई है जो बाहर फूड के लिए सर्च करने के लिए गया है, कोई अपने नेस्ट बनाने में बिज़ी है, राइट। और यहाँ पे जो पेरेंट है वो क्या है, उसके बच्चे को खाना खिलाने में व्यस्त है। इन आवर courtyards also there is a baby dove. There is another egg in the nest but it has not hatched yet. यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो आंगन है, एक बच्चे के आंगन में वो एक डव का बेबी आया था। तो एक बेबी निकल गया था, एक अंडा था, राइट, परंतु वो उसको लेइंग करने को नहीं आया था, राइट। इसमें यहाँ पे एक बाल मंदिर मतलब कि केजी सेक्शन की बात है, नर्सरी की, राइट। तो उसको अभी क्या करने को नहीं आया था, उसको लेइज करने को नहीं आया था। इसके बाद हम देखें on the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its egg. यहाँ पे जो गोपाल भाई थे, राइट, उसके जो घर है उसके घर के बाहर बहुत सारे स्टोन्स से बने हुए होते हैं वॉल्स। तो उसके बीच में जो इंडियन रोबिन है, राइट, इंडियन रोबिन मतलब देव चकली हम गुजराती को कहते हैं। ब्लैक कलर की छोटी सी स्पैरो आती है, वो क्या है, इंडियन रेबिन। तो इंडियन रोबिन है वो उसके होल में अपने एग्स को लेस करती है, उसको एग्स देती है, राइट। तो बच्चू भाई showed it to me. It looked through the binoculars. I saw that the nest was made of grass. On top there were soft wings. राइट, ग्रास से बनाना उसने शुरू किया और टॉप पे वो
टॉप पे हम कैसे बच्चे को सुलाते हैं तो सॉफ्टनेस होती है, तो वैसे वो सॉफ्ट ग्रास ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर एग्स होते हैं। Roots, wool, hair and cotton wool. This is how the robin makes its nest. What a soft and cozy home for its chicks. ऐसे नेट्स बना के वो अपने चिक्स को वहाँ पे रखते हैं। The robin is not like the crow. वो क्रो के जैसा नहीं है। A crow's nest in made of all kinds of things, even piece of wire and wood. क्रो के जैसा नहीं है वो। जो रॉबिन का है वो माला एकदम नीट एंड क्लीन और सॉफ्ट होता है, और क्रो का माला सॉफ्ट नहीं होता है। वो कोई भी थिंग से वो अपना पीसीज, जो कोई भी पीसीज होता है उससे वो अपना काम चला लेता है, राइट। अभी नेक्स्ट आई सॉ अ बेबी बर्ड। मैंने एक बेबी बर्ड को देखा। इन द रोबिन्स नेस्ट, रोबिन के नेस्ट। I saw a baby bird in the robin's nest. It was sitting with its beak wide open. The mouth was red from inside. जो रॉबिन बेबी था उसका क्या माउथ के अंदर वो रेडनेस थी, और उसकी ब्लैक कलर की बिक वो ओपन करके बैठा था। फिर उसका पेरेंट्स मतलब कि उसकी मम्मी है वो उसको थोड़ा करके वो खिलाती थी, फीडिंग कराती थी। In a little while the robin flew the nest and put something in the chick's open beak. कुछ ना कुछ उसको खिलाती रहती थी बिक से। Maybe a few small insects. शायद वो छोटे छोटे क्या थे, इंसेक्ट थे। By then it was evening. अभी शाम को the robin settled down with its chick. क्या होता है वो शाम होने को आई, तो जनरली शाम होती है तो सभी जो बर्ड्स होते हैं वो अपने अपने माले में घुस जाते हैं, राइट। तो ये जो रोबिन्स, इंडियन रोबिन्स थी वो भी अपने नेस्ट में वापस घर आ गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये आपको ग्रीन बॉक्स दिया हुआ है, राइट। ये हमने डव के बारे में भी जाना और रोबिन इंडियन रोबिन के बारे में जाना, फिर क्रो के बारे में भी सीखा। अभी यहाँ पे आपको दिया है कोयल। कोयल मतलब कुकू। ग्रीन बॉक्स में क्या दिया है उसके बारे में, यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली। हम सब जानते हैं कोयल की आवाज़ कितनी मीठी होती है, राइट। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। आप सब जानते हो कि कोयल कुकू ने कभी अपना माला बनाया ही उसके लिए, खुद के लिए वो नेस्ट बनाती ही नहीं है। बनाती ही नहीं है। इट लेज इट्स एग इन अ क्रोज नेट। वो अपने अंडे कहाँ पे रखती है, वो क्रो के जो नेस्ट होते हैं उसमें रखती है। क्यों, तो क्रो के अंडे और कुकू के अंडे दिखने में सिमिलर होते हैं, तो क्रो को पता नहीं चलता है कि ये किसके अंडे हैं। वो तो कोयल रखती है और क्रो उसके ऊपर लेइंग उसको हिट देता है। द क्रो हैच्ड द अलोंग विथ इट्स ओन एग्स। वो अपने एग्स की तरह उस का जो क्रो होता है वो अपने एग्स के साथ जो कोयल कुकू होती है उसके अंडे को भी हच्ड करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है बारबेट, राइट। बारबेट मतलब कंसार, ओके भाई, उसको गुजराती में कंसारा, बाबेट। देयर इज अ स्मॉल ट्री
नियर बाय, वो कहाँ पे रहता है, यहाँ पे नज़ीक में एक छोटा सा ट्री था, उसके ऊपर एक माला नेस्ट लटकता था, वो हमने देखा, राइट। फिर इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच, बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। यहाँ पे जो बाबेट था उसको ये ट्री के ऊपर उसका जो नेस्ट था वो बहुत मस्त था। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेट हाई अप ऑन द ट्री, ट्री है उसके टॉप पे क्रो का नेस्ट था। द डव मेक्स इट्स नेट्स अमोंग द थॉर्न ऑफ अ कैक्टस प्लांट्स और अ मेहंदी हेड्स। जो डव्स होते हैं वो उसके जो नेस्ट है वो कहाँ पे बनाते थे, वो जो कैक्टस और मेहंदी के जो वाड़ होती है उसके अंदर वो बनाते हैं। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउसेस। वो जो स्पैरो होते हैं वो अपने माले खुद बनाते हैं, वो घर के आसपास बनाते हैं, वो तो हम सब ने देखे ही है। इट मेक्स इट नेट्स एनीवेयर, ये इसके माले जो है वो कहीं पे भी बना देते हैं। ऑन टॉप ऑफ अ कबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लगेज। यहाँ पे कबूतर कहीं भी जो स्पैरो है वो कहीं भी उसके माले बना देते हैं, या तो कबाट की कबोर्ड है उसकी टॉप पर, जो मिरर है उसके पीछे, या तो छज्जे पे, राइट। तो यहाँ पे हमने ये बाबेट के बारे में भी जाना। अभी यहाँ से नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे। आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।